एंड वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो मैं इस बुक में ये जो स्टोरी लेके आई हूँ, ये बुक आप देख ही रहे हैं। बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो ये बुक मैं इस समय पढ़ रही हूँ और इसकी जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनके घर में या जो लोग बीमार हैं। मीन्स स्पेसिफिक उन लोगों के लिए स्टोरी बहुत अच्छी है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं और आप उससे परेशान हैं, वो परेशानी वो चिंता अगर आपको है तो उस चिंता से कैसे आप निपट सकते हैं या कैसे उस चिंता से मतलब उस चिंता को खत्म कर सकते हैं। और इवन इसमें वो चीजें भी हैं कि जो आपको वो जो प्रॉब्लम है उससे कुछ हद तक आपको वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो काफी बीमार रहता था और क्या हुआ उसके साथ, और वो बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गया था। तो तब उसने क्या किया, तो ये सब चीजें इसमें दी हुई हैं। तो चलिए देखिए, मैंने मार्क कर रखा है, मैं बुक में यहाँ हूँ बट आपके लिए स्टोरी मैंने जो सेलेक्ट करके रखी है वो ये है। तो पेंसिल है ये साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है। स्टोरी शुरू हो रही है यहाँ से। तो स्टोरी शुरू करते हैं। आई नो अ मैन इन इंडियाना। तो ये उस जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि आई नो अ मैन, वो बता रहे हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। H.J. Englert of 1335th Street, Indiana, who is still alive today because he discovered this secret. 10 years ago, Mr. Englert had a case of scarlet fever, and when he recovered, he found he had developed nephritis, a kidney disease. He tried all kinds of doctors, even quacks. He informed me, but nothing could cure him. Then, a short time ago, he got other complications. His blood pressure soared. He went to a doctor and was told that his blood pressure was hitting the top at 214. He was told that it was fatal, that the condition was progressive, and he had better put his affairs in order at once. I went home, he says, and made sure that my insurance was all paid, and then I apologized to my maker for all my mistakes and settled down to gloomy meditations. I made everyone unhappy. My wife and my and family were miserable, and I was buried deep in depression myself. However, after a week of wallowing in self-pity, I said to myself, you are acting like a fool. You may not die for a year yet, so why not try to be happy while you are here? I threw back my shoulders, put a smile on my face, and attempted to act as though everything were normal. I admit it was an effort at first, but I forced myself to be pleasant and cheerful, and this not only helped my family, but it also helped me. The first thing I knew, I began to feel better almost as well as I pretended to feel. The improvement went on, and today, months after I was supposed to be in my grave, I am not only happy, well and alive, but my blood pressure is down. I know one thing for certain. The doctor's prediction would certainly have come true if I had gone on thinking dying thoughts of defeat. But I gave my body a chance to heal itself by nothing in the world but a change of mental attitude. Let me ask you a question. If mere acting cheerful and thinking positive thoughts of health and courage can save this man's life, why should you and I tolerate for 1 minute more our minor glooms and depression? Why make ourselves and everyone around us unhappy and blue when it is possible for us to start creating happiness by merely acting cheerful? तो ये स्टोरी यहाँ तक है। पेज नंबर मैं आपको बता दे रही हूँ। पेज नंबर है इसका 123 एंड 124। तो यहाँ से और यहाँ तक ये स्टोरी है। तो स्टोरी ये है कि ये जो व्यक्ति हैं H.J. इंग्लर्ट इंडियाना में रहते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनको स्कारलेट फीवर हो गया था। एक काइंड ऑफ फीवर होता है जिसे लाल बुखार भी कहते हैं, वो हो गया था। और
जब वो उससे ठीक हुए तो उन्हें पता चला कि उनको किडनी प्रॉब्लम भी हो गई है और इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी उनकी कि उन्होंने मतलब हर तरह का इलाज ट्राई किया, हर चीज़ें की। इवन जो क्वैक्स यानी जो नीम हकीम होते हैं या जो इधर जादू टोना इस तरह के छोटे मोटे इलाज होते हैं, हर लोकल जगहों पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा, तो उन्होंने वहां तक ट्राई किया। मतलब जब आपका कोई चीज खोता है तो आप हर जगह ढूंढते हैं, आप घड़े में भी ढूंढने लगते हैं। तो इस तरह की कहावत है कि जिसका हाथ ही खोता है वो घड़े में भी ढूंढ लेता है। तो उन्होंने हर जगह इलाज कराया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद उनका उनका जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा होने लगा और ब्लड प्रेशर उनका टॉप टू 14 तक पहुंच गया। और तब डॉक्टर ने कहा कि अब ये बढ़ ही रहा है आपका, तो अब ऐसा है कि अब ये हम मुझे नहीं लगता ठीक होगा, तो आपको चाहिए कि अब अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आप समेट लीजिए, पूरी कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। उस व्यक्ति ने घर में जाके भी यही चीज बताई कि ऐसा ये हो गया और उसने चेक किया कि उसके इंश्योरेंस और ये सब जो भी ड्यूज वगैरह हैं वो पेड हो जाएं, जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी कर सकता था वो उसने करना शुरू किया। लेकिन आप सोचिए कि कोई मरने वाला है और वो पैसे समेट रहा है या फिर इस तरह की कोई भी चीज कर रहा है, तो सोचिए उसकी मेंटल पोजीशन क्या है। मतलब आप मरने वाले हो, आपको पता है, आप बहुत एक अजीब सी फीलिंग है कि कोई मरने वाला है और वो क्या चीज समेट सकता है। बहुत चीजें हैं जो उसको पूरी करनी होती हैं, कोई एक चीज तो होती नहीं है कि हाँ। लेकिन उसने जो चीजें की वो उसने उन्होंने लिखी है यहाँ पे कि उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह अपना देखा कि वो पेड है कि नहीं। और फिर उसके बाद में एज यूजुअल जो करना चाहिए कि उन्होंने भगवान से भी माफी मांगी कि जो भी मैंने गलतियां की हो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। उन्होंने भगवान से भी माफी मांगी और वो फिर इस वजह से फिर डीप डिप्रेशन में चले गए, ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। उनकी फैमिली वाले भी दुखी हो गए कि अब कुछ दिन बचे हैं या एक साल या 6 महीना जो भी टाइम बचा है, निश्चित तो नहीं है बट समय कम है। तो फैमिली मेंबर्स और वो दोनों लोग डिप्रेशन में सब लोग चले गए। लेकिन एक दिन उन्हें लगा ऐसा कि मैं जो हूँ बहुत मूर्खतापूर्ण काम कर रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल मूर्ख हो चुका हूँ कि मुझे अभी पता है कि मैं मेरे पास अभी 1 साल है। जब अभी मेरे पास 1 साल है तो मैं उस 1 साल को तो कम से कम जी लूं। उस 1 साल में मर के जीने से क्या फायदा है, तो जो इयर्स मेरे पास हैं उनको मैं अच्छे से जीऊं। और तब उन्होंने कहा कि उन्होंने तुरंत फैसला किया कि नहीं, मुझे अब हंसते रहना है और मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं 1 साल बाद मर जाऊंगा। तो उन्होंने इस तरीके का संकल्प करके और चेहरे पे एक हंसी लाई और उन्होंने नया दिन नए तरीके से शुरू किया। और जब उनके चेहरे पे वो हंसी और उस तरह से हैप्पीनेस देखी घर वालों ने भी, तो उन लोग को भी जो मायूसी छाई रहती थी, मायूसी रहती थी, दुख रहता था हर वक्त, उनके चेहरे से भी वो दुख खत्म हुआ। क्योंकि आप अगर सामने वाले को दुखी देख रहे हो तो आप हंस नहीं सकते हो, आप खुश नहीं हो सकते हो। तो जब सामने वाला आपको हंसता हुआ दिखेगा तो आप भी उसको भी अप्रिशिएट करोगे, प्लस एंजॉय भी करोगे उसकी उसकी चीजें, आप अपना भी कुछ दोगे, तो दोनों लोग घर में फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब एंजॉय करेंगे और खुश रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने शुरू किया, अपने एटीट्यूड को चेंज किया। जब उन्होंने एटीट्यूड को चेंज किया और उन्होंने अपने दिमाग से ये चीज निकाल दी कि मैं मरने वाला हूँ या मैं मर जाऊंगा अब कुछ ही साल में या एक आध साल में मैं मर जाऊंगा, तो जब उन्होंने ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दिया, तब जो है उनकी जो चीजें हैं वो घर में भी बदलने लगे। घर में जो सब लोग दुखी रहते थे वो सही रहने लगे। उन्होंने अपनी थॉट जो है पॉजिटिव की, अपनी जो थिंकिंग थी उसको पॉजिटिव की, और थिंकिंग पॉजिटिव करने के बाद में वो इस समय अभी भी एकदम स्वस्थ और जी रहे हैं। उनकी लाइफ जो डॉक्टर ने कहा था उस हिसाब से वो मर चुके होते, लेकिन वो मरे नहीं, सिर्फ अपनी थॉट्स चेंज करने की वजह से वो जो बीमारी थी वो सब बीमारियां उनकी काफी हद तक कम हो गई, उनका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कम हो गया। और उस जो ये चेंजेस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आए, तो उन चीजों ने सब कुछ उनका एकदम चेंज कर दिया। उनके घर में खुशियां आ गई, वो घर वाले खुश रहने लगे, उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो हर वो इंसान जो जिस तरह से सोचता है वो उसी तरीके से होता चला जाता है। तो सोचिए, जब सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उनकी वो बीमारी जो कि एक इंटरनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचिए क्या क्या चीजें हैं जो सॉल्व हो सकती हैं। तो ये थी एक ऐसे
व्यक्ति कहानी जिन्होंने सेल्फ असेसमेंट किया और सेल्फ इम्प्रूव किया, उनको एनालाइज किया और चेंज किया, और इस तरीके से उन्होंने ये जो बीमारी की वजह से उनको प्रॉब्लम थी, उनके घर में प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने खत्म की। तो मुझे लगता है हम लोग को भी इस तरह ही करना चाहिए, और इतना प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए कि लाइफ में कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा, बहुत चीजें हैं जो पहले से फिक्स हैं या एकाएक आ जाती हैं, हमने उसकी कोई प्लानिंग नहीं की है। तो अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हम सोचे कि होता जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कम से कम जो हम कर सकते हैं, जितना हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए बेहतर ढंग से, ताकि ना हमें दुख हो ना दूसरे को दुख हो। और अपने दुख को इतना ज्यादा कि आपके सामने कोई हंस के आ ही ना पाए, आपके सामने हंसता हुआ कोई आए ही ना, क्योंकि उसे लग रहा है कि सामने वाला तो बहुत दुखी है, अगर हम उसके ऊपर पास हंसते हुए जाएंगे तो उसे कैसा लगेगा। तो आपकी जो खुशी कहीं से आ भी सकती है, वो भी रास्ता भी बंद हो जाए। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चेंज जरूर करिएगा अपने एटीट्यूड में। अगर आपका एटीट्यूड पहले से पॉजिटिव है तो इट इज बेस्ट, और अगर नहीं है तो उस एटीट्यूड को चेंज करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और अगर ये स्टोरी जिसके भी यूज की हो, जो भी जिसके घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमार हो, कोई इस वजह से डिप्रेशन में चल रहा हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, तो उनको ये स्टोरी जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि शायद शायद जिनको आप सेंड करें उनमें से अगर 2% लोग भी इस स्टोरी से इम्प्रेस होकर कुछ चेंज ला सकते हैं, उनकी फैमिली में कुछ चेंज आ सकती है, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप एक डॉक्टर की तरह काम करेंगे, आप इस स्टोरी को भेजेंगे और वो जब इस स्टोरी को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं खुद को एनालाइज करेंगे, खुद का सेल्फ असेसमेंट करेंगे और कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। अगली फिर किसी स्टोरी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।